Hello, students. We are discussing the chapter non-profit organizations. And in previous video, we discussed the basics of non-profit organizations, their meaning, and type of accounts which they have to prepare. So, students in this chapter, generally, question is asked in board exams, that is to prepare income and expenditure account from given receipt and payment account. And as I told in the previous video, that to prepare income and expenditure account with balance sheet along with the adjustment, we should be aware about some of the accounting treatments. Only then we will be able to complete a comprehensive question. We will be able to solve a comprehensive question. And yesterday we have discussed the treatment of funds, how the funds treatment is done. And I told you that in the funds treatment, I told you in the previous video that the opening balance of fund, which is given in the question, and in that opening balance of fund, all the incomes of the fund are added and expenses of the fund are subtracted. Remaining fund is shown in the liability side of balance sheet. If fund investment is there, then the interest on that fund investment is also the income of the fund, and that interest is also added in the fund as interest. Now today we shall discuss subscription treatment. Now first of all, question arises here, what is subscription? Subscription is the amount which every member of the club, every member of NPO has to pay so that their membership remains alive. It is a source of income of not for profit organization. Subscription received whether they relate to current, previous or next period, and it is shown in the debit side of receipt and payment account if we are preparing the receipt and payment account, and income side when we prepare the income and expenditure account. Subscription relating to the current year, whether received or not, are shown in the credit side of income and expenditure account. Subscription not received, that is outstanding, are shown in the asset side of the balance sheet as an accrued income, and subscription received in advance is the liability, hence to be shown in the liability side of the balance sheet. Amount of subscription to be shown in the income and expenditure account is calculated as under. Means subscription, suppose in a club 100 members are there and every member has to contribute rupees 100 as सब्सक्रिप्शन. एक क्लब है बच्चों, सपोज उसमें 100 मेंबर्स हैं और हम हर मेंबर जो है वो साल में 100 रुपये देता है, तो उसका टोटल सब्सक्रिप्शन साल का कितना हो गया? 10,000. Subscription is the major income of any NPO. Okay, and this is the revenue income. When we prepare the income and expenditure account, then this income is taken as revenue income and shown in the income side of income and expenditure account. Okay, but the subscription which is given in the receipt and payment account or which is shown in the question, that subscription is called सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. जो सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में दिया होता है या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में लिखा होता है, उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. साल के दौरान टोटल सब्सक्रिप्शन जितना मिला है. लेकिन बच्चों उस सब्सक्रिप्शन में कुछ सब्सक्रिप्शन पिछले साल का एरियर भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग हो सकता है जो इस साल मिला हो, या कुछ
मेंबर्स ने एडवांस भी दिया हो सकता है, जो कि इस साल का सब्सक्रिप्शन नहीं है, अगले साल का सब्सक्रिप्शन है। तो बच्चों यहाँ हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, मान लीजिए हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं 2019 और 20 के लिए, और सब्सक्रिप्शन हमें टोटल रिसीव होता है 9,000। अब इस 9,000 में ये टोटल रिसीव हो रहा है, इसमें हो सकता है कि कुछ पिछले साल का बचा हुआ भी आया हो, और किसी अगले साल के पार्टनर ने मेंबर ने एडवांस में भी दे दिया हो, और इस साल कुछ लोगों ने नहीं भी दिया हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब हम 2019 और 20 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, तो हमें यहाँ हम जब इनकम में बाई सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, तो बच्चों ये जो सब्सक्रिप्शन लिखना है हमें हमें सिर्फ 2019 और 20 का ही लिखना है। जो पिछले साल का यहाँ आके इसमें शामिल हो गया है वो नहीं लिखना है। जो अगले साल का यहाँ शामिल है वो भी नहीं लिखना है। हम जो यहाँ सब्सक्रिप्शन लिखते हैं उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। और क्वेश्चन में क्या दिया होता है हमें, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन हमें दिया होता है, क्वेश्चन में दिया होता है रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, साल में जो मिला, उस मिले हुए में से पिछले साल का भी उसके अंदर शामिल हो सकता है, अगले साल का भी शामिल हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना होता है हमें, वो क्या लिखना होता है, फॉर द ईयर। मीन्स जो टोटल मिला है उसमें 19-20 का कितना है वही लिखना है हमें। अब ये जो टोटल मिला हुआ है उसमें करेंट ईयर का लिखना है, जिसके हम अकाउंट, जिस ईयर का हम अकाउंट बना रहे हैं उसी का सब्सक्रिप्शन लिखना है, आउटस्टैंडिंग नहीं लिखना, एडवांस नहीं लिखना। तो इस टोटल में से कैसे निकालें कि फॉर द ईयर कितना है, करंट ईयर का कितना है। इसके लिए एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले को आज हम पुट करके आप सीखेंगे। जैसे फॉर्मूला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन at the end of the year plus advance subscription at the beginning of the year minus outstanding subscription at the beginning of the year beginning at the beginning of the year minus advance subscription at the end of the year। अब बच्चों ये एडजस्ट करके जो आएगा उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। मतलब जो साल का टोटल सब्सक्रिप्शन हमें मिला होता है उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, साल में जो टोटल मिला उसमें आउटस्टैंडिंग, मान लीजिए ये साल है 2019 एंड 2020 मीन्स 1 अप्रैल इस साल है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। अब इस फाइनेंशियल ईयर में टोटल आपको सब्सक्रिप्शन मिला वो आपको लिखना है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर,
उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब है कि 31 मार्च 2020 को कोई सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग है तो बच्चों वो किस साल का होगा, वो इसी साल का होगा। इस साल का आउटस्टैंडिंग है तो इसी साल का होगा। तो इसी साल का सब्सक्रिप्शन है तो वो हमें ऐड करना है, मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन में जो इस साल का सब्सक्रिप्शन होगा, जो टोटल हमें सब्सक्रिप्शन मिला उसमें जो इस साल का सब्सक्रिप्शन होगा वो हमें ऐड करना है, और जो अगले या पिछले साल का होगा वो हमें माइनस करना है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा हम प्रूव कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये टोटल सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है इस साल में, टोटल सब्सक्रिप्शन वो हमने यहाँ लिखना है। उसके बाद प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा। साल का एंड कब है? 31 मार्च 2020 को। अगर 31 मार्च 2020 को सब्सक्रिप्शन अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो वो इसी साल का होगा, क्योंकि करंट ईयर का ही होगा। तो करंट ईयर का ही है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर प्लस कर दिया। और दूसरा प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दिस इज बिगिनिंग, ये बिगिनिंग लिखा हुआ है, दिस इज बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब बच्चों एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर देखा जाए तो साल का बिगिनिंग कब है? 1 अप्रैल 2019 को, है ना। अगर इसी डेट को 1 अप्रैल 2019 को ही अगर हम माने कि एडवांस में सब्सक्रिप्शन आया है साल के पहले ही दिन, तो साल के पहले दिन एडवांस में आया होगा तो किससे कंसर्न होगा, किस ईयर से कंसर्न होगा? एडवांस तो हमेशा फ्यूचर से कंसर्न होता है, तो साल के शुरू में ही आ गया है तो वो आगे से कंसर्न होगा। आगे का मतलब क्या हुआ? आने वाले टाइम के लिए। तो आने वाले टाइम में सबसे पहले कौन सा टाइम आएगा? यही टाइम आएगा कि साल का बिगिनिंग में मिल गया तो ये इसी साल का होगा। इससे अगले का भी हो सकता है, उससे अगले का भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या कंसिडर करना होता है कि साल के बिगिनिंग में ही अगर कोई सब्सक्रिप्शन मिल गया है तो वो इसी साल का होगा, क्योंकि ये साल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए ये भी इसी साल का सब्सक्रिप्शन हुआ। कौन सा? एडवांस एट द बिगिनिंग, इसलिए इसको भी हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये साल का बिगिनिंग है 1 अप्रैल, इसमें आउटस्टैंडिंग हो गया। अगर इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग हो गया तो आउटस्टैंडिंग तो पिछले साल का, आउटस्टैंडिंग का मतलब सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, टाइम निकल गया, तो वो तो पिछले साल का हुआ। ये साल तो देखो आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल को शुरू में ही आउटस्टैंडिंग है, मतलब वो पिछले साल का था जो हमें अभी तक नहीं मिला, नया साल शुरू हो गया, नए साल के पहले दिन भी वो आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब वो पिछले साल का था। तो पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो हमें इस टोटल सब्सक्रिप्शन में इस बार मिल गया होगा, तो पिछले साल वाले सब्सक्रिप्शन को हमने माइनस कर देना है। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमने माइनस करना है। नाउ एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, एडवांस एट द एंड, एट द एंड मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर। ईयर का एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2020 को। तो 31 मार्च 2020 को जब ईयर का एंड हो रहा है उस वक्त हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। कितना एडवांस मिला हुआ है? जो भी वट एवर अमाउंट मिला हुआ है वो है फ्यूचर से कंसर्न। ये साल तो ख़त्म हो गया, अभी एडवांस है तो वो अगले साल से कंसर्न होगा या उससे अगले साल से कंसर्न होगा, तो वो इस साल का तो नहीं है। तो जो इस साल का नहीं होता उसको हम माइनस कर देते हैं, इसलिए एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या करते हैं? माइनस। और ये प्लस माइनस एडजस्ट करने के बाद मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर जो टोटल मिला उसमें आउटस्टैंडिंग एट द एंड इस साल का ही है इसलिए प्लस किया, प्लस एडवांस एट द बिगिनिंग इस साल का ही है प्लस किया, माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग पिछले साल का है माइनस कर दिया, माइनस एडवांस एट द एंड अगले साल का है माइनस कर दिया, और ये जो नीचे आया प्लस माइनस करने के बाद वो बना सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। और हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लिखते हैं? सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। तो जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे उससे पहले हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ क्रेडिट साइड में लिखना होता है एज एन इनकम। तो लिखना कौन सा लिखना होता है? जो मिला वो नहीं लिखना होता, वो जो मिला वो रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर होता है ना। जो मिला वो रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर होता है, और ये क्या है? सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। तो फॉर द ईयर ऐसे निकलता है, ऐसे एडजस्ट करके निकालेंगे, फिर वो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, अब वो कुछ मैं आपको न्यूमेरिकल्स करने को दे रहा हूँ जो आपने करके लाने हैं और मुझे दिखाने हैं।
बच्चों जो फंड्स ट्रीटमेंट के क्वेश्चन थे उनके भी कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, वो भी मैं आपको दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आपने करके फिर मुझे ग्रुप में दिखाने हैं। ये देखिए फंड्स ट्रीटमेंट के क्वेश्चन। ये फंड्स ट्रीटमेंट के क्वेश्चन हैं, गौर से देख लीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 ये क्वेश्चन आपको पढ़े जा रहे हैं। आप इनको क्वेश्चन को करिए, इनके आंसर्स भी होंगे साथ में। एक क्वेश्चन और है नीचे, उसको भी पढ़ लीजिए। आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। अब हम करेंगे सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट। तो सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट की ज़्यादा नहीं, मैं आपको 4 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ये 4 क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट के आपने करके लाने हैं। ऐसे देख ले, तीन क्वेश्चन आपको इजीली पढ़े जा रहे हैं। आपको रीटिक कर करके आप इसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन करें और मुझे बताएं, कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18। ओके बच्चों, कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे बताएं, ये क्वेश्चन सॉल्व करके क्लास ग्रुप में डालें, और नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।